could see this particular art, how it has been flourishing. And not only that, if Rajasthan is known all over the world, even people from USA or other countries, even today they come for a day workshop or for 2 days, they stay at Bagru and they learn this art. Quality, of course, theirs is the best if we consider. Cost, price. A rational consumer today is interested only in getting a product at a reasonable price. What they do is the fabric is treated with this natural seed and then it is powdered and then again the fabric is dyed, that is getting soaked in this particular myrobalan process. जिसको हम पीला करना, normally people in Bagru they are familiar with this, and then it is dried. Huge landscape is required because you cannot hang it on any wall क्योंकि जो natural component है वो सारा एक जगह इकट्ठा हो जाएगा. So it's very carefully dried so that the dye as well as the color on the print it does not get scattered. But the problem is they are unable to meet the local demand itself. वो कह रहे हैं कि demand तो बहुत है बट हम इंडिया की डिमांड को भी पूरा नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द टाइम टेकिंग प्रोसेस. तो बाहर का डिमांड तो हम कहाँ से पूरा करेंगे. सो दिस इज हाउ इवन दो द एक्सपोर्ट अर्निंग्स हैज बीन रिड्यूस्ड बट स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग हार्ड. इन दिस सिचुएशन से इफ यू आर अ बिजनेसमैन हु इज इन्वॉल्व्ड इन ब्लॉक आर्ट या ब्लॉक प्रिंटिंग में, आपको दिख रहा है सामने सामने एक कॉम्पिटिटर जो आपसे बेहतर क्वालिटी दे रहा है, सस्ते दाम में दे रहा है और बहुत सारा वैरायटी दे रहा है और क्विकली भी दे रहा है. नाउ टेल मी हाउ कैन यू cope up with this challenge if you are a businessman? So what we can do is we can contact different types of fashion designers or brand designers and we can do partnership with them. One thing that can be do. Second thing, if they are oriented with a 40-kilometer area, why not we can ask government, we can propose the idea and ask government to create all this one thing at another location if it is possible. They mentioned that they only uses the natural ingredients, so they and it is also protected. It is not harming the environment, so we can focus on quality conscious customers, those like who prefer environment friendly products. Like there are many like Target or many products are being launched in the market which are low costly but which are environment safe. I think ultimately this industry has to portray itself. The only thing is the visibility of this particular art is lagging behind. इतने सारे competitors और इतने सारे low priced products हमारे पास हैं, इतने सारे diversified products हैं, it's very difficult to identify which is right and which is wrong. As a consumer also we never take into account the social cost involved in the production of any particular product. हमें product चाहिए होता है, हम ये नहीं देखते कि इस product का society पे क्या cost है. Nobody thinks about it. So this small, I think, realization among consumers can help this particular industry to revive. Block printing जब करते हैं, that is say 5.5 meters, it cost them only for printing 2,000 rupees. Labor charge alone, material charge तो छोड़ो. But in screen printing, they are getting it done only by 20% cost. So you could see that there is a huge difference, and therefore screen printing is becoming more economically viable as compared to block printing. में कपड़ा है, पहले सिर्फ एक सिंगल कपड़े पे काम होता था, कॉटन पे, वो भी एक ही क्वालिटी कॉटन की 30 और सिर्फ फैब्रिक बनता था. हमने उसको बेड कवर बनाया, उसका कुशन कवर, पिलो, राउंड टेबल बने पहले, फिर साड़ियाँ बनी, दुपट्टे, स्टोल, ये सब बने. उसके बाद में जैसे हमने उसमें और कपड़े, जैसे इंडिया में हैंड प्रिंटिंग के अलावा जो गोल्फ क्राफ्ट है, हैंडलूम का सेक्टर बहुत बड़ा है इंडिया का.
या कि हर स्टेट में एक या दो स्टेट को छोड़ के हर स्टेट में खुद का एक हैंडलूम प्रोडक्ट है। जैसे राजस्थान में कोटा है, यूपी के अंदर बनारस है, गुजरात में कच्छ भुज में है, काला कॉटन बनता है, महाराष्ट्र में नागपुर के पास भंडारा है, एमपी में चंदेरी है, महेश्वर है, छत्तीसगढ़ में खरगोन है, बंगाल में बनता है सब जगह, उड़ीसा में बनता है, झारखंड में बनता है, बिहार में बनता है, आंध्रा, तमिलनाडु, केरल, हर जगह कपड़ा बनता है। और अभी कोविड के बाद में जो ऑनलाइन का जो चालू हुआ, तकरीबन बगरू में 1000 यंग जनरेशन के लड़के लड़कियां इस काम को बेच रहे हैं मार्केट में। एक नया सेक्टर और खुल गया, जिससे तकरीबन डायरेक्ट इनडायरेक्ट बगरू में 15,000 आदमी हैं जिनको भी रोजगार मिला हुआ है और वो काम कर रहे हैं। तो बात यही है कि ब्लॉक प्रिंटिंग तो अगर अपन उसकी हैंडमेड नेचर को हाईलाइट करें तो पॉसिबल है कि इस आर्ट को वापस रिवाइव किया जा सकता है। और वैसे तो डिफरेंस करने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन आप जब एक बार स्क्रीन प्रिंटिंग और ब्लॉक प्रिंटिंग दोनों फैब्रिक साथ में रख के देखेंगे तो आपको डिफरेंस आसानी से पता चल जाएगा। आज जयपुरिया मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के कैंपस में आके मुझे बहुत अच्छा लगा और कैंपस भी बहुत अच्छे बना हुआ है। और यहाँ के बच्चों के साथ जो हमने बातचीत करी उससे मुझे को ये उम्मीद है कि भविष्य में जो हमारा हाथ का काम है छपाई का, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का, वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि बच्चे इतने उत्सुक थे इस चीज़ को लेके कि कैसे होता है, कैसे डाइज बनती है, क्या है, और उन्होंने जितना बगरू आने के लिए उत्साहित दिखे मेरे को, उससे मेरे को ये लग रहा है कि आगे का ये जो भविष्य है हमारे काम का वो बहुत ब्राइट होगा। और मैं ये चाहता हूँ कि जितनी भी आज की युवा पीढ़ी है ब्लॉक प्रिंटिंग ही नहीं, हिंदुस्तान के हर क्राफ्ट को समझे, देखे और उनको खरीदे, जिससे कि ये काम चालू रहे।